मतलब है there is no starch. There is no starch. That means starch has been used up by saliva. तभी आयोडीन ने कोई कलर नहीं दिया. How many of you are clear with this experiment? Raise your hand. I'm just giving a quick review. Explain it again. Okay, I'll do that, bete. I'll do that. Who is it? किसको नहीं clear हुआ बच्चे? चाहत. Ma'am, Okay. me too. Okay, no worries बच्चे. I'll repeat. Okay, don't worry. सबको ये पता है starch gives blue black color with iodine. I'm repeating everything once again. बहुत ध्यान से सुनो, ये tricky questions हैं और ये NCERT में teachers generally they skip. So I'm trying कि all of the questions which are given in your NCERT they should be covered. तो अगर सबको पता है starch जो है it reacts with iodine immediately to give blue black color. ठीक है. टेस्ट ट्यूब हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली. एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है. दोनों में हमने 1% स्टार्च सॉल्यूशन डाला हुआ है. दोनों में स्टार्च है. इन टेस्ट ट्यूब ए आई एम एडिंग iodine directly. In test tube B, at first I'm adding saliva, and then after some time I'm adding iodine. In test tube A, as starch solution immediately reacts with iodine, it will turn into blue black. Blue black. किसको टेस्ट ट्यूब ए के बारे में क्लियर हो चुका है? रेज योर हैंड. बी क्विक. ओके. तो ये टेस्ट ट्यूब ए का सबको क्लियर है. सिया क्लियर है बेटे? सिया यस, टेल मी बेटे इफ इट इज क्लियर. सिया रेज योर हैंड. टेस्ट ट्यूब ए वाला क्लियर है बेटे? ओके. तो और टेस्ट ट्यूब बी में हमने सलाइवा डाल दिया. दोनों चीजें सेम है. आयोडीन भी है, स्टार्च भी है. इसमें भी आयोडीन भी है, स्टार्च भी है. ये स्टार्च था बट इसमें हमने सलाइवा डाल दिया. सलाइवा ने क्या किया? स्टार्च को खा लिया. सलाइवा हैज डाइजेस्टेड द स्टार्च. सलाइवा हैज यूज्ड अप दिस स्टार्च. So iodine will not show any reaction with starch. It will remain as such. Yes. Is starch related to carbohydrates? Ma'am, are you speaking anything? नहीं बच्चे. हाँ, starch is like carbohydrate. It is a sugar. तो sugar जो saliva है उसने sugar को digest कर दिया. तो कुछ है ही नहीं है, तो iodine will not react at all. So please write down observation लिखो. Starch solution of test tube A turns blue. अब clear है सभी को? Ma'am, I was asking if starch is like broken down carbohydrate. Starch is a carbohydrate. Yes, starch is broken down with the help of saliva. अभी हम पूरा ना process करेंगे. I'll repeat human digestive system. I'll try to complete this human digestive system today. Please be attentive, everyone. तो अब आप लिखो. इसमें एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें देखा गया टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. तो टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स ब्लू. Will you tell the observation? Yes, this is the observation only बेटे. Observation ही आप लिख रहे हो. aim और लिख चुके हो. Materials required, procedure is given in your NCERT. So I'll directly come to observation. Starch solution of test tube A turns blue. There is no change in test tube B. क्या कलर था आयोडीन का? Blue black. येलो. आयोडीन का, हाँ आयोडीन का येलो. Starch solution of test tube A turns blue.
There is no change in test tube B. Only pale yellow color of iodine is observed. अब inference लिख दो. Inference बताया था, inference और conclusion are the same thing. Iodine reacts with starch to form blue color. Iodine reacts with starch to form blue color in test tube A. Iodine reacts with starch to form blue color in test tube A. In test tube B, no such color change. In test tube B, no such color change. क्यों नहीं आया कोई color? Anyone from girls? Ma'am, because saliva absorbed all the starch. Because saliva digests the starch. Okay? Okay. Digest बोलेंगे उसको. In test tube B, there is no change, which indicates that starch has been broken down. Starch has been broken down due to enzymes in saliva. Due to enzymes in saliva. अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे. I'm going to start with human digestive system. I'm going to start with human digestive system. अब आप लोग सिर्फ सुनोगे पहले, then I'll make you write down. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in the last line, why did you say starch has been broken down into enzymes? Which is starch is what? Sugar. तो sugar जो है digest हो गई saliva से. Starch has been broken down by the enzymes in saliva. अभी I'll explain. Don't worry. अभी हम इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि ऐसा क्या था जो डाइजेस्ट हो गया. आज आपने पूरा ध्यान सबने ये बच्चे ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे इवन फॉर योर एमसीक्यूज एंड फॉर योर थ्योरी पार्ट आल्सो. तो आपने सिर्फ पहले सुनने वाला काम करना है. माउथ में सबसे पहले आपको बताया था एंट्री इज थ्रू लिप्स. माउथ में हमारे एक आते हैं टीथ, टंग. टीथ के बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था. इनके फंक्शन क्या है? कटिंग, बाइटिंग, chewing, grinding, cutting, biting, chewing. Very good. Chewing, tearing, grinding. ये दांत के काम है. Why these things are performed by teeth? Because we have different types of teeth: incisors, canine, premolars and molars. याद होगा हमारे मिल्क टीथ होते हैं. बताओ कितने? 32. नो बेटे 20. हाँ और परमानेंट? यस 32. परमानेंट 32.
मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत होते हैं 20 और परमानेंट टीथ हैं 32। क्या आप लोगों के 32 होंगे अभी? Oh, ma'am. Uh, no, नो ma'am. नो, क्योंकि आपके अभी अकलदार विजडम टूथ जो है अभी नहीं आया है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे दांत हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज व्हाई डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय टीथ। कटिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, these all functions are performed by our teeth। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टंग। टंग में हमारा मेन फंक्शन क्या था? टू प्रोवाइड टेस्ट। एंड आई टोल्ड यू देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसमें यस, स्वीट, Sweet, sour, bitter, बीट, स्वीट, sour, bitter, and salt। salt. Salt. और ये आप मुझे म्यूट योरसेल्फ, हु इज दिस? यश, यश म्यूट योर माइक बेटे। तो 4 तरह के हमारे टेस्ट बड्स हैं। तो टंग का मेन फंक्शन ही होता है टेस्ट, टू प्रोवाइड टेस्ट, है ना? खाने से पहले आप स्वाद लेते हो, आप कहते हो टेस्टी नहीं है तो खाते भी नहीं हो, इज इट? So it tongue is very important function, plays very important role even while speaking. The tongue is very important part of our digestive system. It A helps in mixing provide, of food also. yes। तो टंग का एक फंक्शन आपको बताया था, शाबाश। क्लास में अगर ध्यान से बैठोगे ना, बिलीव मी, आप लोगों को बुक में भी देखोगे ना, आपको 1 सेकंड में लर्न हो जाएगा। टंग का फंक्शन था टू प्रोवाइड टेस्ट, टू मिक्स फूड विद द सलाइवा। I'm pushing of food Yes, very good। to food pipe. Yes, helps in pushing food। क्या नाम था फूड पाइप का? Esophagus. Esophagus. हाँ, esophagus। Esophagus, तो esophagus is another name for food pipe। So mixing food with saliva, pushing food into esophagus, these are all functions of the tongue। And I told you that जो हमारा मुंह में जो खाली जगह होती है, उसको हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं, yes, Buccal cavity. buccal cavity। Yes, yes, buccal cavity। buccal cavity is the empty space in your mouth। अगर आप अपनी टंग को रोल करते हो, ऊपर यू विल फील हार्ड रूफ, और नीचे क्या है? सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट सरफेस। ठीक है, ऊपर टिकलिंग भी हो गई जब आप टंग रोल करोगे, इज इट? ऐसे थोड़ा, हाँ, थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग Yes. आती। हाँ, तो टिकलिंग इसलिए हो रही है बिकॉज ऊपर जो सेंसरी ऑर्गन है, तो टंग का मेन फंक्शन आ गया, और टंग में जो इम्पोर्टेंट रोल था, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, एंड द कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। फिर हमारा खाना जाता है, जो हमारा फूड है, इट गोज इनटू फेरिंग्स। माउथ के बाद किस में आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड नोज। मैंने आपको शायद बताया था कि कई बार क्या होता है, खाना मुंह से नाक में चला जाता है। वो क्यों? क्योंकि इट हैज अ कॉमन ओपनिंग, माउथ एंड नोज हैज कॉमन ओपनिंग, फेरिंग्स। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फूड पाइप। फूड पाइप अनदर नेम इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो खाना है हमारा, कौन सी मूवमेंट की तरह जाता है? यस, अगर खाना है तो किस उसको बोलते हैं? वेव ऑफ कंट्रैक्शन क्या बोलते हैं? Zigzag. Peristalsis. पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस। जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था, वर्जोत की एग्जांपल दी थी कि अगर आप जल्दी जल्दी में एक परांठा खाते हो या आप कोई ऐसी चीज खाते हो, एकदम वो गले में अड़ जाती है, तो अपने आप कैसे, पानी भी नहीं पी रहे हो तो ये अपने आप कैसे जाती है? हमारे यहाँ ये ईसोफेगस में, इस पाइप में मूवमेंट होती है, जो इस खाने को ऐसे नीचे धक्का मारेंगे, और ये जिसकी वजह से पुश होके ऐसे, तो ये आगे आगे बढ़ता रहता है, ये खाना है, आगे बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली दिस फूड रीचेस टू दी स्टमक, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा खाना। तो ये जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन थी, जिसको आपने नाम दे दिया पेरिस्टालिसिस। तो ईसोफेगस शोज पेरिस्टालिक मूवमेंट। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? रेज योर हैंड, बी क्विक। Ma'am, peristallium. What is the spelling of it? पेरिस्टालिसिस मैंने लिखा हुआ है बच्चे, PERISTALSIS। ये मैं सब लिखवाऊंगी आपको बच्चे। म्यूट योर माइक कमल। Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, last time you gave us a formula about teeth. 2123 upon 2123 into 2. Yes. What was that?
Could you please explain? हाँ बता देते बेटे, मुझे ये वाला था इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये जो था ना ये फॉर्मूला, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें मैंने आपको What बताया does था, 2 into 2 mean? हाँ मैं अभी बताती हूँ बेटे। इंसीजर्स है 2, कैनाइन्स है 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये लोअर जॉ में भी ऐसे ही होता है 2 1 2 3, और हमारे जॉ के दो हिस्से हैं, एक ये पार्ट है अपर जॉ का, ये लोअर जॉ का है, ये दूसरी साइड है, तो दोनों में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो दिस कम्स आउट टू बी योर 32। ठीक है, Okay. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जे शेप स्टमक। जब वो हमारा फूड गया तो वो किस में एंटर करता है? जे Stomach. शेप स्टमक में, जे शेप स्टमक। स्टमक में इट हैज फोल्ड्स ऑफ स्किन, ऐसे स्किन के फोल्ड्स होते हैं, which secretes mucus. और स्टमक में सिक्रीट होता है HCl, याद है सभी को? स्टमक सिक्रीट्स HCl. Hydrochloric What is acids. the concept of HCl once again? Yes, yes. I'll repeat. जो हमारा HCl है, एसिड है, इसके दो फंक्शन होते हैं। It helps in digestion of protein. Ma'am, we can also say that digestion of food. No, digestion of protein. Food नहीं बेटे, food नहीं, सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। आपने चिकन खाया है, आपने मीट खाया है, आपने मशरूम्स खाए हैं, आपने फिश खाई है, सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अदरवाइज ये HCl सिक्रीट ही नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जनरली, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियन? रेज योर हैंड। जानवी, आदिल, हारिका, भवित, यश, रोहन। कमल, यस, पुष्कर, काया, नो, सौम्या, श्रेया, वरजोत, नो। ओके, सो आपने ये देखा होगा कि जब हम ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं चीजें तो पेट में एसिडिटी बन जाती है। और एसिडिटी जो है वो क्यों रिलीज होती है? बिकॉज दिस फ्लैश टेक्स टाइम टू कंज्यूम और टू डाइजेस्ट। तो HCl is secreted in stomach. तो stomach helps in digestion of proteins. प्रोटीन में वो enzymes form करता है। तो I'm giving you new terms, pepsin और trypsin. These two enzymes, they work only in the presence of HCl. Stomach secretes HCl because HCl helps in activating two enzymes, pepsin and trypsin, जिनका फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। एंड मैंने आपको दूसरा फंक्शन बताया था इसका, इट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। जो आप गलती से किसी Is का there amylase also with pepsin and trypsin? amylase, no, no, no. Oh. Amylase is separate protein, तो उसके लिए I'll tell you वो that is a separate protein, okay? That is a separate enzyme and that amylase has different activity. तो सिया दोबारा से सुनो बेटे, आई गेस देयर इज सम नेटवर्क इशू। तो सिया, am I audible, सिया? Yes, she's there. अच्छा बच्चे देखो, मैंने आपको बताया जैसे ही आप खाते हो चिकन, अगर आप नहीं खा रहे तो नहीं होगा प्रोड्यूस HCl। बार बार ये बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि HCl इज ऑलवेज सिक्रेटेड only when we eat some protein. Protein can be in the form of fish, chicken, meat, egg white, mushrooms, paneer, कुछ भी आप खा रहे हो ऐसा। Even if you are vegetarian, you can have protein in various forms. Even if you are eating dal, any dal, you know, dals, they are rich in protein. बच्चों को, छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को दाल का पानी दिया जाता है because that dal water has protein in it. Protein, this protein, when it enters stomach, it secretes HCl. Function of HCl is to digest protein
and to kill germs. तो मैंने बताया था अगर आप गलती से आपके मुंह में बाल चला जाता है, बैक्टीरिया चले जाते, इंसेक्ट चला जाता है, आप कोई ऐसी चीज खा ले तो एकदम बच्चों के कहते हैं बच्चे ने गलती से कुछ खा लिया तो सिक्रीट होता है, तो सिक्रीट होता है HCl. Ma'am, you are muted. Sorry. Okay. हाँ, HCl जो है it helps in killing germs. Okay. It helps in addition of, If there's yes. no protein in our food, so no germs will also get killed as there's no HCl produced. नहीं, HCl नहीं प्रोड्यूस होगा जनरली germs. बच्चे आपके अगर suppose some hair like structure or something unwanted particle you have consumed accidentally, then they'll remain in your stomach and wait for the acid to be formed and then they'll be killed. आपने देखा होगा किसी बच्चे ने, सॉरी टू से, बट किसी ने बच्चे ने बटन खा लिया, कॉइन खा लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, that thing remains in their stomach. And sometimes when we eat, we are asked to consume more of laxative, जैसे बनाना खाने को बोलते हैं या दवाइयां ऐसी देते हैं जो फटाफट से उसको पानी बहुत ज्यादा पीने को बोलते हैं, है ना, प्यूक करने को बोलते हैं. ऑब्वियसली वो बैक तो करेगा नहीं, कॉइन बड़ा है या बटन बड़ा है तो वो थ्रू सिस्टम ही बाहर निकालना पड़ता है, थ्रू फीकल मैटर, थ्रू पॉटी. तो जर्म्स स्टक कर जाते हैं जब तक HCl नहीं आता. जब HCl होगा तो देन विल बी रिलीज्ड. ओके. Okay. तो HCl का Okay, फंक्शन, अब हाँ, HCl बहुत ध्यान से सुनना. HCl का फंक्शन, HCl जो है इट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स एंड हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग एंजाइम्स फॉर प्रोटीन डाइजेशन. और कौन से एंजाइम्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. 2 एंजाइम्स दिए हैं. कौन से एंजाइम्स है? यस, Pepsin and Pepsi ma'am, Pepsin trypsin. and trypsin. Pepsin and पेप्सिन. हाँ, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये 2 एंजाइम्स. अब हमारा खाना बहुत जल चुका है क्योंकि तेजाब था तो वो जल गया है खाना. अब ये जो एसिडिक जो है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. ये था आपका जे शेप स्टमक. तो जे शेप स्टमक में ये आता है लिवर. लिवर इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. लिवर का सिर्फ एक फंक्शन आता है टू सिक्रीट. लिवर का सिर्फ एक मेन फंक्शन है, इट सिक्रीट्स Bile juice. bile. Fat, Yes, bile juice. bile juice. It secretes bile juice. Okay, it secretes bile juice. Liver जो है it helps in secrete. Wait, ये liver है. Liver secrete करता है bile juice. Bile juice के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. Bile juice has no Ma'am, gallbladder is reducing of fat. gallbladder अभी मैं बताती हूँ बेटे. Bile juice has no enzyme. It has no enzyme. तो इसमें जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. जो भी इसका जूस था वो सारा जाके इसमें स्टोर होगा. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? टू स्टोर बाइल जूस. गॉल ब्लैडर का यही फंक्शन था, टू स्टोर बाइल जूस. Ma'am, you are on mute. हाँ, यस यस यस. बच्चे देखो इसमें बाइल जूस जो है लिवर सिक्रीट कर रहा है और जाके स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में. अब गॉल ब्लैडर जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कीप bile juice. So sometimes when this is affected, this part is affected, तो जैसे गॉल स्टोन्स हो गए, पथरी जिसको बोलते हैं, तो sometimes yes they can remove this organ. This organ is not performing very important function, it is just storing bile juice. तो इसीलिए इसको अगर ये किसी का रिमूव भी हो जाता है तो जिसको हिंदी में या पंजाबी में पित्ता बोलते हैं, सुना है कभी किसी ने? Yes, गॉल, ma'am. हाँ, गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है. तो ओके, तो लिवर का जो बाइल जूस था उसने एक तो स्टमक से जो इतना एसिडिक खाना था HCl का अगर pH मैंने आपको बताया हो लास्ट क्लास में, तो इट हैज 0 to 1. pH, यस, वेरी एसिडिक, 0 to 1. इससे pH नीचे 0 to 1. इससे नीचे रेंज ही नहीं है. 0 मैक्सिमम रेंज है.
तो 0 to 1 है इसका pH and it is highly acidic. It can burn anything, so it is very acidic. बट हमारे स्टमक को कुछ नहीं होता, वो मैंने आपको बताया हुआ है. आई हैव रिटन ऑल्सो बिकॉज इट हैज म्यूकस लाइनिंग. Why this HCl does not affect our stomach? Because the stomach has mucus lining which protect it from the harmful effects of HCl. Clear everyone? तो HCl बचा इसलिए Yes, sir. HCl से बचा हुआ है because it has mucus lining. तो बाइल जूस में अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक खाना जो है हमारा वो एंटर किया है लिवर में, लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस. तो बाइल जूस का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक. To neutralize the acidity of stomach. Ma'am, if the gallbladder removed, then where the bile juice goes? Ma'am, bile juice also helps in the emulsification of fats. Yes, emulsification. Yes, very good. Emulsification. जरूरत ही नहीं होती बेटे, स्टोर करना था, नहीं होगा, यूज हो जाएगा. अगर गॉलब्लैडर नहीं भी हुआ, वैसे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बट ये है कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, स्टोरेज खत्म हो जाएगी. Then it helps in emulsification of fat. Now, what is emulsification? आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारा जो देसी घी है वो ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता, तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको, जो देसी घी को किसी में मिक्स करना पड़ता है. Breaking of fats into simpler substances. yes, lobules. तो फैट जो है वैसे ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे जो बाइल जूस है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट. और फैट को ब्रेक डाउन किससे कर रहा है? दिस प्रोसेस ऑफ dissolving fat is known as emulsification. अब हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है. अंकित का बार-बार लीव हो रहा है. Excuse me, ma'am. और हाँ जी बच्चे बोलो. Ma'am, these functions is of bile juice. Yes, this is the function of bile juice. Okay, bile juice के functions थे. उसके बाद जब ये खाना हमारा bile juice स्टमक के बाद फिर नेक्स्ट ऑर्गन आता है, गॉल ब्लैडर आ गया. गॉल ब्लैडर ने फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज पेनक्रियास. दिस इज पेनक्रियास. जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास जो है इसका मेन फंक्शन आता है, इट हैज टू फंक्शंस, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड. सिर्फ सुनना है आपने, समझ लोगे तो अपने आप लर्न भी हो जाएगा. ये एंजाइम्स भी फॉर्म करता है, हार्मोन्स भी. किसी ने डायबिटीज के बारे में सुना है? Yes, ma'am, it happens because of there is no formation of insulin. वेरी गुड. वो हार्मोन ही नहीं बनता, इंसुलिन. Yes, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने पेट में देखना चाहते हो तो जो बेली पॉइंट है, समझ रहे हो, पेट के अंदर जो पॉइंट, बेली पॉइंट जिसको बोलते हैं बेली, तो वो उसके आसपास ही आपके पेनक्रियाज हैं. और ये पेनक्रियाज अगर खराब हो जाए, आई एम सॉरी टू से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज योर पेनक्रियाज विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द शुगर. योर मिल्क हैज शुगर, योर चपाती हैज शुगर, एनीथिंग यू हैव इन योर डाइट हैज शुगर इन इट. और शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो ब्लड शुगर लेवल विल बी वेरी हाई, यू विल बी हाईली डायबिटिक. और ब्लड हमारा इतना गाढ़ा हो जाएगा, आप समझ सकते हो जब पानी में हम चीनी ज्यादा करते हैं तो वो चाशनी जो है बहुत थिक हो जाता है, एंड दैट कैन बी टर्न्ड इनटू वैक्स. जो वैक्सिंग करवाती है ना गर्ल्स, दैट इज मेड आउट ऑफ शुगर ओनली, शुगर और पानी में मिक्स करके. yes, ma'am. हाँ, तो वो शुगर में पानी ही मिक्स होता है, तो इतना थिक हमारा गाढ़ा खून हो जाएगा, इतनी चीनी हो जाएगी. दिस इज हार्मफुल. तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ शुगर. एंजाइम्स जो हैं वो है salivary amylase, sorry, pancreatic amylase. Ma'am, diabetes is a really common problem among teenagers, youngsters, and older people nowadays.
Yes, because of stress और and dietary habits also. आपने देखा होगा हमारा डाइट ऐसे ही खराब हो चुकी है कि मम्मा ने सुबह ब्रेकफास्ट दिए तो ब्रेकफास्ट आप अब दिन में अब 1 बजे उठ रहे हो या 12 बजे उठ रहे हो, देन यू आर हैविंग योर मील, सेकंड मील फिर वो लेट हो गया 3-4 बजे, लास्ट मील एब्सेंट हो गया, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, बट योर सर्कल गेट्स डिस्टर्ब्ड। आपने रात का खाया हुआ 10 बजे, अगले दिन आप 12 बजे या 11 बजे खा रहे हो, जस्ट इमेजिन your organs, they are becoming weak day by day because they are extracting nutrients from your blood. Am I clear to everyone? अब खाना खा नहीं रहे हो, Yes. रात के 10 बजे से लेके अगले दिन 10-11 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया हुआ, but your organs they are working day and night and they are in need of food. खाना आपने खाया नहीं, 2 बजे या 1 बजे खाया, वो भी क्या खाया, मैगी खाई या फिर आपने कोई गलत चीज खाई जो that was not required by your body, और वो खराब हो गया सब सिस्टम। तो दिस dietary habits they are very important. Sleeping habits, stress is very common these days. मम्मा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, Yes, हर रात पे ma'am. कैसे होगा, मुझे टेंशन हो रही है ना, तो दिस लीड्स टू secretion of insulin, inhibit the function of release of insulin. एंजाइम्स में पेनक्रियाज जो रिलीज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो हमारे शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब हमने जो पढ़ा, माउथ में एक चीज सिक्रीट होती है जिसको हम नाम देते हैं सलाइवा। सलाइवा आप लोगों को अभी बताया था मैंने, विच इज नोन एज स्पिट। जो स्पिट है इट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि जब आप स्पिट को रिलीज करते हो तो आपने देखा उसमें झाग आती है, बिकॉज इट हैज एसिड। कोई भी चीज में तेजाब होगा तो वो एसिडिक होगी, तो इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। सलाइवा बिकॉज इट हैज pH लेस देन 7, 7 होता है न्यूट्रल। किसको पता था ये बात? 7 इज न्यूट्रल pH। ओके, तो 7 से नीचे है, इट हैज pH ऑफ अराउंड 6.5। सलाइवा का एमसीक्यूज में एनटीएससी में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा? इट इज 6.5 एंड दिस एसिडिक सलाइवा हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। तो गलती से अगर मुंह में आपके कुछ इंसेक्ट या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो दे गेट किल्ड बिकॉज ऑफ एसिडिक pH ऑफ सलाइवा। इसीलिए कहा भी जाता है कि ओवरनाइट आपकी जो सलाइवा है, अगले दिन अगर आप मॉर्निंग में अपनी स्पिट को यूज करो ऑन योर पिंपल्स और ऑन योर वूंड्स, कहीं पे भी चोट लगी है, कहीं पे पिंपल्स हैं, तो वो हील हो जाते हैं। Ma'am, what is the full form of pH? बच्चे ये आप एक चैप्टर में पढ़ोगे अभी इसे Potential बेसिस। of hydrogen. यस यस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। जहां पे भी अमाइलेज आएगा वो डाइजेस्ट करेगा शुगर। तो आपके मुंह में शुगर डाइजेस्ट हो गई। आपके सलाइवा में क्या डाइजेस्ट होता है? शुगर। क्योंकि ये अभी अभी आपने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट जिसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि शुगर डाइजेस्ट हो रही है क्योंकि आपने स्टार्च में सलाइवा डाला था, स्पिट डाली थी, तो सलाइवा ने आपके शुगर को डाइजेस्ट कर दिया, बिकॉज आपकी सलाइवा में क्या था? लुक ऑन योर स्क्रीन, Amylase. अमाइलेज। और अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है? टू डाइजेस्ट Sugar. फिर हमारा खाना गया, ओके, फिर हमारा गया था खाना स्टमक में। स्टमक में था एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन या फिर HCl। इन्होंने डाइजेस्ट क्या किया था? Protein. प्रोटीन। फिर आया हमारा खाना लिवर में। लिवर में था बाइल जूस जिसने किसको डाइजेस्ट किया? Fat. Neutralization of neutralizes acids and breaking fats into simpler body. यस यस, फैट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया नेक्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, पेनक्रियास। पेनक्रियास ने क्या डाइजेस्ट किया आपका? फिर से
sugar, क्योंकि उसके अंदर क्या था? humol, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो आपके खाने में 3 चीजें आपकी डाइजेस्ट हो चुकी हैं, और याद होगा हमने पढ़ा था शुगर, प्रोटीन, फैट। अगर याद हो हमने एग्जाम्पल भी ली थी, मैंने बताया था कि यश ने अगर एक बाइट ली है जिसमें पनीर, चपाती, चपाती इज व्हाट कार्बोहाइड्रेट, इफ ही हैज टेकन holozoic, दाल, होलोजोइक न्यूट्रिशन, हाँ। बट हमने अगर ये बात आपको याद हो मैंने बताई थी, चपाती शुगर, तो चपाती खाई है तो शुगर हो गई, शुगर खाई उसने। अगर उसमें उसने दाल खाई है तो प्रोटीन है, दही लगाया अगेन शुगर है, और फिर अगर उसकी मम्मा ने देसी घी लगा दिया उसके ऊपर तो क्या आ गया? फैट। fat. तो ये सारी चीज, Tell the difference between insulin and amylase. बेटे एक मेरे से ना डिलीट हो गया पेज, यस ये है। बच्चे एक एंजाइम है, एक हार्मोन है। एंजाइम था अमाइलेज, हार्मोन है इंसुलिन। दे आर डिफरेंट थिंग्स। हार्मोन्स इज समथिंग एल्स व्हिच इज सिक्रेटेड by different organs to regulate the growth and metabolism of body, whereas this enzyme they act on the food. Ma'am, and definition of insulin, because I guess it's same as amylase. नहीं, amylase beta, it is an enzyme which acts on sugar. Hormone is something else. Hormones, they are the chemicals which are secreted in our blood. They regulate the functioning of our body. इंसुलिन पूरा ब्लड में काम कर रहा है, अमाइलेज सिर्फ वहीं पे काम कर रहा है जहां शुगर है, आपका खाना जहां पे आया है। Okay. ठीक है, फिर अब खाना अब आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये पचा हुआ खाना हमारे पार्ट में जाता है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन। कितने बच्चों को ये बात पता थी? ओके, only few students. Okay, okay, almost all. Very good. तो आप लोग लोअर क्लासेस में ये पढ़ के आए हो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Small intestine is small in diameter, but it is the largest part. It is around 6 meters in length. 6 मीटर मैंने आपको शायद बताया भी हो पहले, 6 मीटर लंबा। जैसे अगर आप टर्बन देखते हो पूरी तो 6 मीटर्स लॉन्ग, या फिर आप साड़ी देखते हो मदर की तो दैट इज अराउंड 6 मीटर इन लेंथ। इट इज सो बिग। अब छोटे से पेट में इतना सारा इंटेस्टाइन कैसे आ जाता है? अगेन अ वंडरफुल थिंग। The small intestine is small in diameter, but it is the largest part. Small intestine has finger-like projections called as villi. ये आपके पेज 100 पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है जो आप पढ़ोगे। So they have small finger-like projections called as villi. Villi small, छोटी छोटी उंगलियों जैसा लगता है ऐसे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? Increase surface area for absorption. Ma'am, there is always a question in an exam that why is small intestine bigger than large intestine? Small intestine अभी बताया बेटे, it is bigger in length. No, ma'am, not lengthwise but function wise, something like that. हाँ, because it has large surface area. अब देखो मैंने ये डायग्राम में बनाया है चार्ट कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं। अगर मैं इसी वायर को अगर मैं ओपन अप करूं इसी को, तो इट विल बी डबल इन इट्स लेंथ। सरफेस एरिया ज्यादा हो गया Yes. इसका। मैम हाँ, यस यस। मैम मेरे को ना डिफरेंस बिटवीन अमाइलेज एंड इंसुलिन से समझ नहीं आया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था और लीव हो जा रही थी। ओके ओके, अमाइलेज और इंसुलिन ये बेटे एक है एंजाइम, एक है हार्मोन। एंजाइम वो होता है जो खाने को ब्रेक करेगा या किसी भी चीज को ब्रेक करेगा, नॉट ओनली फूड बट एनीथिंग which is to be broken down. और हार्मोन जो आ रहा है वो दैट एक्ट्स ऑन बॉडी थ्रू आउट योर बॉडी। दैट मीन्स आपके ब्लड में कहीं पे भी आपकी बॉडी का ब्लड है उस पर वो एक्ट करेगा इंसुलिन, और आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल कर देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने बताया अगर आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्योंकि चीनी जिस चीज में होती है, आपने देखा ना चाशनी बनती है तो कितनी थिक हो जाती है। Ma'am, like wax. वैक्स, यस। तो इतनी थिक हो जाएगा आपका ब्लड, वो चलने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। और गलती से अगर वो चल भी रहा है तो जहां पे भी वो जाएगा इट विल क्रिएट प्रेशर। तो हार्ट पे इसीलिए हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। इट विल रप्चर द वॉल्स ऑफ द हार्ट। Ma'am, Ma'am, people faint that's why, also ma'am, heart like that. attack occurs. Yes, if you have high BP or low BP problem, these are the reasons.
तो अब ये खाना सारा डाइजेस्ट हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो गया है. Why the food is absorbed? Because it has villi. Villi increase the surface area for absorption. So it increase the surface area for absorption of food. Question आता है, how is small intestine? This question is given in your NCERT. I think it is on page number 100. I don't have it. तो उसमें दिया हुआ है पेज. Why is small? Number 101. ओके 101 पे दिया हुआ है, जहाँ पे येलो इन बॉक्स भी है उसके ऊपर. वही है, वही पेज है 101. No ma'am, 100 पर येलो बॉक्स है, 101 में क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन Designed, yes. I was talking about this. How is small intestine designed? So I think the answer is on 100 only. I think जहाँ मुझे याद है वो यही नंबर था. Like in upper of yellow box. Answer is in yellow box. No, it is not in yellow box. Above Ma'am, yes, that yellow above box. the ma'am in हाँ, yellow. second last कुछ paragraph है. उसमें Yeah, दिया हुआ है ये line. Yes, हाँ, yes, ma'am. last. Digested food is taken by the walls of the intestine. हाँ. The inner lining of the small intestine has numerous Small finger-like project. Yes. This is the answer. हाँ, third, fourth line है. Second last paragraph, third, fourth line. Is it? ऐसा ही कुछ आंसर है. Small intestine, they have large surface area, they have numerous finger-like projections called as villi. अब villi का क्या फंक्शन है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है. They increase surface area for absorption. एक तो उसमें small finger-like projection है, दूसरा खाना एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में, तो ब्लड सप्लाई भी एनरिच्ड है. It has large number of blood supply. तो ये दोनों चीजें आ गई इसके अंदर. फिर इसके बाद जब ये खाना हमारा जाता है किस में जाएगा? Look on your screen. I've made this part large intestine. large intestine. Yes. जो हमारा खाना एब्जॉर्ब ना हो वो लार्ज इंटेस्टाइन में से बाहर आ जाएगा बॉडी में. तो अब बहुत ध्यान से सुनना, लार्ज इंटेस्टाइन से वो ही खाना बाहर जाता है जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं होता. अनडाइजेस्टेड फूड, कई बच्चे लिख देते हैं डाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट. क्यों डाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट हुआ? डाइजेस्टेड फूड तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया. Undigested food is thrown out of body through INS via large intestine, and this process is known as digestion. तो इसमें जो खाना जाता है ये anus के through undigested food. How many of you are clear with this topic? Raise your hand. If not, then I'll repeat. What is Yes, the definition of assimilation? I'll dictate बच्चे. सभी मैं आपको सारी definition बता देता हूँ. अभी पहले आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लियर और नॉट. Only 7 students have yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Adil, Kamal, Pushkar, Yash, Soumya, Sia. Raise your hand, bete. मैं एक बार मैं रिपीट कर दूंगा. Okay, I'll repeat. बच्चे देखो हमने शुरू कहाँ से किया था? माउथ से. माउथ में था टंग, टीथ और बकल कैविटी. फिर हमारा खाना, ये तो पता चल गया था माउथ का. Yes. फिर उसके बाद कॉमन ओपनिंग में गया फेरिंग्स. फेरिंग्स इज कॉमन ओपनिंग. फेरिंग्स के बाद किस में गया? फूड पाइप में, ईसोफेगस में. और उससे नीचे किस में गया था? पेरिस्टालिसिस. फिर इसके बाद गया स्टमक में. स्टमक में डाइजेशन किसकी हुई थी? प्रोटीन. और इतना ज्यादा एसिडिक था उसको किसने न्यूट्रलाइज किया? लिवर के बाइल जूस ने. लिवर के साथ क्या अटैच था? गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर. फिर उसके बाद आया पैनक्रियाज. पैनक्रियाज ने हमारे डाइजेस्ट किया शुगर. लिवर ने डाइजेस्ट किया था फैट. पैनक्रियाज ने डाइजेस्ट किया शुगर. और फिर जब ये खाना सारा डाइजेस्ट हो गया तो गया फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन. जो बचा हुआ खाना रह गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो गया? इजेशन. अब किसको क्लियर हो चुका है? Yes, मैम क्लियर हो गया. ओके, वेरी गुड कमल. अब आप लोग स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. बी क्विक. स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लिख रहे थे.
अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना है, देखो, इट कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल and digestive glands. It comprises of alimentary canal and digestive glands. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जो पाइप शुरू हुई थी माउथ से और नीचे आ गई एनस तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। उसके साथ जुड़े हुए थे ग्लैंड्स जैसे स्टमक, लिवर, पेनक्रियास। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज से बना है? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? सिया बताओ Elementary canal. Okay, okay. Alimentary canal and digestive glands. It comprises of alimentary canal and digestive glands. Next time, मेरे को alimentary canal consists of the following parts. Alimentary canal consists of the following parts. सबसे पहला पार्ट क्या आएगा? जानवी बताओ। Ma'am, what do we have to write up after it comprises of elementary canal and digestive glands? Yes, alimentary canal consists of the following parts. Elementary canal consists of the following parts. सबसे पहला पार्ट आप लिख रहे हो buccal cavity, mouth. Ma'am, do we have to write the functions, means of the mouth and tongue वगैरह? नहीं 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 नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ थिंग, क्योंकि 199 पेज पे जो आपको पूरा कंप्लीट दिया है, यू हैव टू रीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सो राइट डाउन फर्स्ट पार्ट. इट लीड्स इनटू बकल कैविटी. व्हाट इज बकल कैविटी? द एम्प्टी स्पेस. The empty space in the mouth. Yes, it leads into buccal cavity. Next point लिखो. The floor of buccal cavity has tongue. Excuse ma'am. हाँ बोलो. After with mouth, ma'am, what we have to write? Mouth में लिख रहे हो. It leads into buccal cavity. It leads into buccal cavity. The floor of buccal cavity has tongue. The floor of buccal cavity has tongue with taste buds. Sorry ma'am. The floor of buccal cavity has tongue with taste buds. Tongue में क्या थे? Taste buds. Next point, man possesses teeth on both jaws. Man possesses teeth on both the jaws. Bracket में लिख लो incisors, canine, premolar, molar. I, C, PM and M. Man possesses teeth on both the jaws. Teeth it's itself plural है, tooth बोलते हैं एक को, single को. Teeth on both the jaws. ब्रैकेट में लिख लो incisors, canine, premolars, molars. Pharynx लिखो. It is a short region
short region after the mouth cavity. Short region after the mouth cavity. Next point लिखो esophagus, OESOPHAGUS. It is Mom, called as a food pipe. Yes, yes. It is a long, narrow tube. It is a long, narrow tube which leads to stomach. Yes, ma'am. It is a long, narrow tube which leads to stomach. Stomach के लिए लिखो. It is a J-shaped structure. J-shape है ना? It is a J-shaped structure. Where food is stored and partly digested. It is a J-shaped structure where food is stored and partly digested. Next part लिखो small intestine. Mom, you forgot liver. Ma'am, liver, ma'am. हाँ बच्चे नहीं ये एक्चुअली आप क्या लिख रहे हो आप एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज पाइप. पाइप के साथ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हमने नहीं लिखने. समझ आई बात? Okay, ma'am. हाँ मेरी बात क्लियर हुई ना सभी को? I told you this pipe is elementary canal. So we are Ma'am, talking about stomach only is pipe. also digestive glands. ma'am. ये नहीं, stomach is a part of pipe. ऐसे pipe ऐसे हो गई थी ना. Okay. ma'am. तो elementary canal. तो अब लिखो small intestine. It is comparatively more longer and coiled part. It is comparatively longer and more coiled part with large surface area Ma'am, after more. it is more coiled. It is comparatively longer and more coiled part which has large surface area ब्रैकेट में लिख लो villi to absorb digested food. Next लिखो large intestine. Large intestine में लिखो it is shorter and wider part which opens to outside through anus.
which opens to outside through anus. Ma'am, can you repeat? It is shorter and wider part which opens to outside या exterior through anus. Excuse me, ma'am, we can also say that it excretes the undigested parts हाँ, and वो इस undigested food. वो इसका फंक्शन आएगा बेटे. वो एसिमिलेशन जो मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा ना बच्चे ने, वो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगी. What is ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion. तो उसमें Okay, आएगा ma'am. egestion का पार्ट आएगा. That is the function. Okay. Okay, ma'am. बेटे आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी से एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन वो ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स में. Clear everyone? If you have any doubt related to this topic, just let me know. Excuse me, ma'am. No. Yes. Ma'am, pancreas produces enzymes and hormones, and it digests sugar. हाँ, hormones digest sugar. Hormones digest नहीं, digest sugar करता है, sorry, amylase. उसको sugar को control कौन करता है? Hormone. That is why it is called as heterocrine gland. Heterocrine gland helps in heterocrine gland is a gland which secretes both hormones as well as enzymes. So sugar Okay. is digested in the mouth as well as pancreas. Yes, yes. Sugar दो जगह digest हो रही है, you're right. Two different types of sugar? Same sugar. अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा हमारी intake sugar की है ना, तो it is partly digested in mouth and partly in the pancreas. Okay. ठीक है. So am I clear with everyone? Yes. Yes, ma'am. हाँ बच्चे आपने next class में वो diagram complete करना है. And I've seen that many students have already left the class. So please try to stay in for long because तभी हमारा syllabus भी